sanitary, I'm watching TV. If myself and other women in our family start using napkin, we have to cut our family milk budget, she replied. I shocked, what is the connection between the sanitary napkin and cutting the milk budget? Then I understood it's a cost factor, this, those, that. Then the same day I went to a shop, then I tried to buy a sanitary napkin packet. The shop will ask what brand you want. Who knows brand and all. Just I figure out a packet, beautiful packet inside the showcase. I bought the packet, the research started it. Being a workshop helper, whatever I took in my hand, the brain tell the weight of the object. Napkin weight, what I took out the packet, I think less than 10 grams. So being a Coimbatore, there are 500 textile mills are there. Those days, the 10-gram cotton price is only 10 paise. That means 10 cents. The multinationals are using only 10 paise raw material, they are selling for 4 rupees. You just think the fold, profit fold. Then I want to make a low, I am damn sure I can make a low-cost napkin. The main thing is I need a women volunteer. Where I can go? The only available choice, the victim is my wife. Okay. Then I bought a sanitary, that cotton in a reputed mill. I made a sanitary napkin and I give it to my Santi. I want a feedback immediately. You see, now whatever I make differently, I'll tell Santi, close your eyes. I'll put her eyes. This time I'm doing the same. Santi is opening eyes. She saw napkin. She's shocked. Oh, you enter in this field now. Yes, I want a feedback. It is not possible to do. You have to wait for some time. Then only understand. Oh, period means monthly once. Even so many others, they don't know what the problem the ladies are facing. Then I go back my workshop duty. Then after 15 days, I'm getting the feedback for my napkin. What napkin you gave it to me? It's very nasty. I'll go back to my cloth using method. Then I need more volunteers. It is not possible to make a napkin and waiting for a month to get feedback. It will take 2 decades to make a napkin. Then I need more volunteers. Then another available victims are my sisters. Even a wife and sister, they are not ready to talk about the subject. Whenever I step into my sister's home, they immediately call my wife, ask Anna, don't come to my home to talk about the subject. Then I got the idea, why not we contact the medical college girls? But how can a workshop helper can approach a medical college girls? Even a college boy is not able to go near to an arts college girls. How can a workshop girl go and meet a medical college girls? Somehow I managed to get something. The same, I think, giving a very napkin and wait for 4 or 5 days, then feedback. Then I realized even the future doctors, the girls, they are not ready to discuss about the subject with an adult. Then I got an idea, why not give a feedback sheet? So these are all the terms I'm pronouncing now. 10 years before, I don't know the feedback sheet and all. I only know cycle seat. Then I made small questions, what I want to ask. Then they have to fill. Those days, 20 girls helping me. I supply a napkin, I wait for a week. On a particular day, I'm going to collect the feedback sheet. I saw in front of that hostel, only 3 girls are very urgently filling the feedback sheet for the rest of them. It's a false one. So what can I do? So how can I conduct furthermore on the false feedback sheet? Then I took it in front of medical college. Then I think, so hereafter it's not good depending on the girls. Why not check myself the napkin? Then it's happened now, the history is coming. A man wore sanitary napkin. Somebody in the English pub, they're writing in off page. That means I bought, actually I use short tape underwear. Those days I bought a triangle shape underwear. I wore a sanitary napkin. In the football player, there is animal blood with mixture and all. There is a tube. While I'm walking and cycling, I will press one dose of will go inside the napkin. This way it's checked. But even though I'm not satisfied, so these steps are happening, the days are going, months are going, 6 months, 8 months, 9 months. So it's almost a year. But my thing is, why my napkin is not working with ladies and girls? The company napkins are working, both are cotton. In the meantime, I'm sending that company napkins material to various labs across India. They are also telling, we found inside is a cotton filament and cellulose substance. They are all the various names for the cotton.
But I'm using cotton, why it's not working? That is my question. So in between, what happened now? Those days, people will suspect I am become a psycho. I am become a mad. First, my wife separated from me. She sent a divorce notice to me. Then I got a very peculiar idea. Taking feedback became a risk one. Then I got a risky idea. Instead of asking feedback, this, that, and all, why not ask a used napkin from a girl? You think the risk. Even I ask ad from the lady, she will suspect I'm going to do some black magic on him to mesmerize. In India, they won't give even a footprint, that soil to take. Then I somehow managed to get a used napkin from the ladies. I spread all this in the backyard of my home, 10 by 10 room. I'm researching on that. And those days, my mother is coming back. I never realized. It's Sunday, I think. She thought, because already wife is gone, separated from me because of research. My mother thinks son is cleaning chicken for Sunday. The moment come and saw the substance on the table, nothing he did. She cried like anything. Somebody did on my son something. He totally became mad. Mahalakshmi going to go out my from home. Because in South, they will put cow dung everywhere in nook and corner of the home. They will put agarbatti, sampran, everything, smoke, everything. It's like Mahalakshmi's place. So, in that house, I put this substance. She also separated from me. Then problem for food. I have to cook myself. So anyway, I succeeded. I realized what is that material inside. The cotton is from flower. It is from the bark of the tree, that's all. It's very simple. The cellulose derived from the bark of the tree. It is called wood pulp. But even after finding that, you need that big plant, cost around 3.5 crore to make a sanitary napkin. That's why from the Second World War, this field in the hand of multinationals only. Even after seeing the plant, I'm never discouraged. I further researched for 4.5 years. I made a small machine like this. I made world-class napkin at my home. This is my innovation. Then I sent it to IIT for evaluation. Those days, I'm trying to pattern because a little bit I'm getting learning, and become skill. Na? I understood IPR rights. I spend a lot, na? Not only money, family, everything. Then those days, there is a small competition is going on in IITM, Madras. That is called Best Innovation for the Betterment of Society. Without telling me, they involved this the innovation in the competition. Around 943 entries, it became first. Suddenly on the limelight. Then everybody writing. Yeah, workshop helper did this, that wall. Then I got a patent rights also. This is only unique product around the globe to make sanitary napkin at low cost machine. You think about the hot cake product. Okay? This machine. So what you will do if you have such type of product with your hand? I'm asking you, any MBA students or business problem persons here, you try to use your IPR rights to maximum accumulation of money. But I never did this. Why? From the childhood, I know no human being died because of poverty. Everything happens because of ignorance. So ignorance means what, you know? Just chasing this money. Everybody was chasing this money. I never studied any business school or thing. I just observing people, what they're doing. If I ask in the crowd what they are doing in your life, definitely I know only two. You, everybody trying to survive. Wearing coat or doing this, this, that, apartment, Rolls Royce, Benz. Finally, you are just surviving in a small way, in a small apartment, an apartment with extra bedroom, a bungalow, that's all. Nothing more than that. Am I right, Dara? You have to agree. Not more than. The problem is, if you want to brush your teeth, you need a nylon handle, and nylon brush is sufficient. What happened in the mind once you go further in your life now, you need a gold-plated and diamond rings, this toothbrush. Then real one. So this is stupidness, what happened around the globe. Okay. So I never did. So I don't want to do business like this, only profit, seeing books for millions, billions. I am doing as a social cause. I am giving the machines to the rural India.
The back view of the plant. These women are now making napkin. So my vision is, I'm going to create not less than 1 million employment for rural women. By the way, I'm going to create India. Only 7% penetration is there. 93% of women are not using napkin. I am going to make that figure into 100%. I'm going to provide 1 million employment creation through this. That is my vision. That's what I'm going to do. Thank you very much. Bye. ओके, कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? कोई फीडबैक देना चाहेंगे? यू कैन स्विच ऑन योर माइक नाउ। जो आपको फीलिंग आई इसको वीडियो देख के, जो डीप आपके हार्ट में जो आपने समझा, वो बोलिए प्लीज, बताइए। यस, एनीबॉडी, हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है, तो सब हम एक फैमिली है ना। अभी तो हमें 16 सेशंस तक साथ रहना है, बहुत सारी बातें करनी है, आप लोगों के बिजनेस खड़े करने हैं। हाँ, बहुत सारे लोगों ने शुरू किए हैं, आप भी शुरू करेंगे, आपके भी ड्रीम्स होंगे। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको शायद हो सकता है जीवन में पहली बार मौका मिल रहा हो अपनी बात कहने का, और जो आपका मन करता है उसे करने का। सोचिए कितना अच्छा होगा कि अगर आपका जो दिल करता है वही करके आप पैसा भी कमा पाएँ। बहुत सारे लोग होते हैं, पैसा सब कमा लेते हैं, लेकिन अपनी मर्ज़ी का कुछ काम करके जिसमें खुशी होती हो, वो बहुत कम लोग होते हैं। तो हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्टीमेटली यू शुड फील वेरी हैप्पी। ओके, कमिंग बैक, यस प्लीज़ बताएँ मुझे। विभू मैम का माइक जो है ऑन हो गया है, शायद वो कुछ कहना चाह रही हैं। यस मैम। I found this very inspiring. ओके, ग्रेट। I think this is the story of Padman movie, but I have not seen it Yes, the also. movie ultimately it went to become Padman. I have also not seen the movie because I had seen the original stuff, so I don't want to see the movie. So really, really very nice and touching. This movie. Okay. Inspiring. Yes. Thank ओके, you. ग्रेट, आपको अच्छा लगा। और कोई बताएं? बाकी सब लोग प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। देखिए, एक तो वैसे ही ऑनलाइन क्लास है, बहुत मुश्किल है मिल पाना एक दूसरे से, और अगर शक्ल भी नहीं होगी तो मुझे समझ नहीं आएगा कि कौन है कहाँ है ना। कोई बात नहीं, डोंट वरी अबाउट योर बैकग्राउंड्स। मुझसे मेसी बैकग्राउंड तो किसी का भी नहीं होगा शायद, है ना। डोंट वरी अबाउट योर बैकग्राउंड्स। जी बताइए मुझे। अब मैं देख रहा हूँ काफ़ी सीनियर लोग भी हैं यहाँ पे। आई कैन सी रजनी मैम, आई कैन सी ओके, आयुषी मैम का भी कैमरा भी ऑन हुआ है। मिनाल मैम, यस प्लीज प्लीज अपनी थोड़ा बताएं। तो क्लास को एक्चुअली होता है डिस्कशन से और सब चीज़ों से पूरी क्लास को जो है वैल्यू ऐड होता है। यस प्लीज, हु वुड लाइक टू कम इन? जी, कोई बताना चाहेगा कैसा लगा वीडियो के बारे में, कोई फीडबैक? यस सर। हाँ जी। अच्छा, मतलब अच्छा स्टार्टअप किया उन्होंने, अपना माइंड अच्छा यूज किया, सोशल वेलफेयर के लिए भी वो अच्छा था, मतलब एक अच्छी चीज की उन्होंने, और अपने इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उन्होंने अच्छा अपना देखा, उन्होंने नीड देखी, हाँ, क्या जरूरत है, उसे हम कितने कम पे बना सकते हैं और इजीली हम उसे सेल कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। और लोग बताइए मुझे। Hello, sir. हाँ जी, यस अंजलि मैम, गो अहेड। No, sir, I am Mamta. You are Mamta. Okay, Mamta. Yes. Good evening, sir. Good evening, everyone. And I am Mamta from Delhi. ये जो पद्मन वाली जो वीडियो अभी हम सब लोगों ने देखी है, वीडियो अच्छी है, इंस्पायरिंग है, और सब लोगों ने पहले भी देखी होगी, मैंने भी देखी थी। और इस वीडियो में बेसिकली वो ये बता रहे हैं कि अगर आप कुछ इस तरह का नया बिजनेस कुछ क्रिएट करना जब स्टार्ट करते हैं, जब सोचते हैं, तो वो आइडिया आपके दिमाग से स्टार्ट होता है, और आप उसको कैसे शेप में लाना है, वो उसके बारे में अपनी जर्नी को उन्होंने एक्सप्लेन किया। अब हमको अपना आइडिया, अगर हमारे पास कोई भी आइडिया है, तो हमको कैसे उसको शेप में लाना है, और हमको अपनी फाइनल डेस्टिनेशन, अगर हम सोचते हैं कि हम एक एंटरप्रेन्योर बन जाए, हम एक अर्नर पर्सन बन जाए, तो उसको हमको कैसे करना है, वो उन्होंने अपने लेवल पर जो था वो उन्होंने इनिशियली बताया कि उनको सैनिटरी नैपकिन के बारे में लेडीज से बात करने में भी प्रॉब्लम थी, कौन बात करेगा, कैसे होगा। उनकी वाइफ भी उस मैटर में बात करने के लिए एग्री नहीं थी, उनकी मदर एग्री नहीं थी। तो उनका कहना ये है कि चैलेंज तो हर जगह आते हैं, लेकिन
बात ये है कि उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना और उसको तरीके से अपनी शेप में लाना मैटर ये करता है। और हमको ये सब कैसे करना है वो हम यहाँ बैठे हैं, सीखेंगे, डिस्कशन करेंगे। और जैसे कि आप सर ऑलरेडी इस फील्ड पे एक्टिव हैं, तो आप हम लोगों को जो सजेशन देंगे उससे हम काफी कुछ सीख पाएंगे। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बोला ममता मैम आपने। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, हाँ जी, बोलिए। हाँ, it was not for profit focus. It was all about health and hygiene. yes, And the difficulties did not drag him down. He just carried on. So that was again inspiring thing for me. Okay, अंजलि मैम कैमरा ऑन हो सकता है आपका? जी सर, एक मिनट। Yeah. Okay. So you say कि देखिए कैमरा ऑन है मेरा। ओके, हाँ दिख रहा है, अभी आ गया। ओके, तो जैसे ममता मैम ने भी कहा, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए, तो उन्होंने कहा कि एक आइडिया आया इनको, थोड़ी हम प्रोसेस जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से हुआ। जैसे उनका कि ऑब्स्टेकल्स भी बड़े सारे थे, लोग बात नहीं करना चाह रहे हैं इस उसके जो है सब्जेक्ट के बारे में, उनकी अपनी वाइफ जो है इस पे बात नहीं करना चाह रही हैं। तो ये जो है छोटे छोटे एक तरीके से ऑब्स्टेकल्स थे जहाँ पे उनको समझ में नहीं आता हाउ डज ही गो हेड। उन्होंने जो है बीच में कुछ मेडिकल कॉलेज की गर्ल्स को भी लिया कि वहीं से कोई फीडबैक मिल जाए। हाँ, और आपने देखा कि वो लोग भी ठीक से बात करने को तैयार नहीं है, जो कि कल डॉक्टर बनेंगे। सो व्हाटएवर यू स्टार्ट इन लाइफ, ये छोटे छोटे इश्यूज होंगे। ओके, और कुछ और लोग प्लीज बताइए मुझे। एंड एनीथिंग व्हाट यू फील? Sir, और एक प्रॉब्लम हो सकती है, like initially you don't have that proper machines and great investments. You can start with a small thing. Okay, I can't find who is speaking. Ayushi. Okay, yeah, Ayushi. Okay, so what did you like about it, and what is that which really kind of, Was not having that machine that costs 3 or 4 crore rupees. So we started making a machine at his home only, and then he produced that sanitary napkins. So even if he did not have that kind of money, he still was able to make it because he was very passionate about what he was doing. उनको क्लियर था कि हाँ, इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ मैंने सॉल्व करना है इस चीज को। ठीक है, अब मैं आपको एक और सिनेरियो देता हूँ। अगर कोई और बोलना चाहते हैं तो मैं भी एक कैंडिडेट को हम ले सकते हैं जो अगर बताना चाहें, प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए। देखिए कि ये एक रिसर्च है कि जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो ज्यादा समझ पाते हैं। पार्टिसिपेट करने के बाद कहते हैं हमारा ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है, हमारा ब्रेन को लगता है हाँ हम गेम में हैं, तो वो ज्यादा रिसीव कर पाता है। तो जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे वो ज्यादा रिसीव करेंगे इससे, और कैन लुक फॉरवर्ड कि उनको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो प्लीज घबराएं ना, क्योंकि आपके पार्टिसिपेट करने से बहुत सारे लोगों को और को भी इंस्पिरेशन आती है, राइट? ओके, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। हाँ, यस, कोई कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। आपकी आवाज कुछ ब्रेक हो रही है, कौन बोल रहे हैं? आवाज आ रही है मेरी? आप हाँ, अभी थोड़ी की। हाँ सर, राधिका। हाँ राधिका, बोलिए। हेलो, या मैंने कहा सर उन्होंने चीज बोली थी कि उनका अल्टीमेट जो बनना नहीं था। राधिका, आई थिंक योर इंटरनेट कनेक्शन इज एक्चुअली नॉट स्ट्रांग इनफ, तो आपकी आवाज बड़ी रुक के आ रही है। ओके ओके, ठीक है। ओके, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। आप मान के चलिए जैसे आप अपने घर से बाहर निकले, ठीक है, आप कहीं जा रहे हैं और आपने किसी को देखा कि कोई इंसान है जो जिनको हेल्प की ज़रूरत है, जैसे कोई बेगर है या कोई डेस्टिट्यूट है या किसी को कोई और प्रॉब्लम है। तो आपने देखा दिस बेगर इज देयर और उनको हेल्प की ज़रूरत लग रही है शायद, और आपका बड़ा दिल पसीज गया, आपने कहा भी कैसे हेल्प कर सकते हैं। आपने सोचा कि चलो उसको पैसे देते हैं, कुछ करते हैं। द मोमेंट लेकिन जैसे ही आपने अपने जो है देखा, तो आपको रियलाइज हुआ कि आप अपना वॉलेट या अपना पर्स तो लाए नहीं है। आप घर से चले, आप पर्स भूल गए अपना लाना, और आपको ये दिख गए हैं बेगर सामने। अब आप इसकी हेल्प करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे?
और कोई जरूरी नहीं है कि हेल्प करनी है, कोई जरूरी नहीं है, अगर ना भी करना चाहे दैट्स फाइन। ऐसे बहुत बेगर्स होते हैं, हम कब कब किस किस की हेल्प करते रहेंगे भाई, हमारा कभी मन करता है किसी की हेल्प कर देते हैं, किसी की नहीं करते हैं। तो अगर आपको नहीं करनी, दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन। आप कहीं आप ये कह सकते हैं कि नहीं सर मैं नहीं कुछ हेल्प करूंगी, मैं बढ़ जाऊंगी, काम पे जाना है। अगर कुछ आप करना चाहें और आपके जेब में पैसे नहीं है, क्या करेंगे आप? यस किरण मैम। हेलो हाँ सर, मेरे हिसाब से थोड़ा सा मैं पहले उससे बातचीत करूंगी। अगर जैसे मेरा तो ना थोड़ा सा होता है, जैसे कोई बच्चे भी या बैगर्स आ जाते हैं ना, जैसे मैं मार्केट में जाती हूँ तो पहले मैं उनसे ये पूछती हूँ कि क्या खाना है, क्योंकि मेरी हैबिट है, मैं जैसे कुछ खाती हूँ तो मेरा मन नहीं करता कि अगर जैसे बच्चे आ जाते हैं तो मैं उनसे पहले प्रॉब्लम थोड़ा सा पूछ सकती हूँ कि क्या रहते, मतलब ये पूछा जा सकता है जैसे कि आपको बिल्कुल। क्या चाहिए, कुछ करना चाहते हो, ये चीज हम पूछ सकते हैं कोई भी बैगर से। तो पूछने के बाद फिर खाना देते हैं आप या नहीं? नहीं, खाना तो नहीं देते, तो बट देते उनकी जो रिक्वायरमेंट, अगर कोई ऐसा होता है कि नहीं हमें काम दिलवा दो या कुछ, तो उस टाइप से कोशिश करेंगे कि कहीं पे उनको काम दिलवा दे, अगर किसी कोई जान पहचान से तो उनसे आप ये बात। जानने की कोशिश करते हैं पहले कि इसको चाहिए क्या, फिर आप कोशिश करते हैं कि अगर आपके बस में है आप वो चीज दे सकते हैं, नहीं दे सकते, है ना? हाँ जी। ओके हाँ ग्रेट जी। वंडरफुल। एनीबॉडी एल्स? तो देखिए क्या हुआ, मैंने आपको एक प्रॉब्लम सिचुएशन दी है और अब आप अलग अलग उसके सॉल्यूशंस दे रहे हैं। तो किरण मैम ने अपना सॉल्यूशन बताया, और बाकी लोग बता सकते हैं। यस ममता मैम। सर कोई भी बेगर हमको मिलता है तो हम पहले उनकी उसकी नीड देखेंगे कि उसको सचमुच में क्या जरूरत है। उसके लुक से पता चल जाता है उसको कितनी जरूरत है और किस चीज की जरूरत है। दूसरा मैम सर सबसे अच्छी बात यह है कि उसको सिर्फ खाना ही दिया जाए, और उसके बाद अगर खाना देने के बाद भी अगर वो कुछ मांगता है तो एटलीस्ट उसको कैश ना दिया जाए, और उसको ये वॉच किया जाए कि अगर वो काम करने के लिए कैपेबल है तो उसको काम के रिगार्डिंग मोटिवेट किया जाए। अगर वो एग्री होता है काम के लिए तो, और हमारी अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज है तो हम उसको काम पर लगाएं, ना कि पैसा दें। चलिए ठीक है, आप कहना है कि उसको रोजगार की तरफ ले जाया जाए, भीख ना हाँ, दी जाए। ठीक है उसको ठीक है। सिखाने के लिए जो भी, जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट से अप्रूवल, कोई फ्री या इस तरह की कोई भी अपॉर्चुनिटी है तो उसको उससे इंट्रोडक्ट कराया जाए ताकि वो अपनी उस पर काम करे। बस ठीक है, उसकी लाइफ और बेगर। वो बेटर हो, बेगर ना रहे वो। ठीक है। यस यस। ओके ओके। एनीबॉडी एल्स? आप अपने लेवल पे क्या हेल्प करेंगे? आप उसको हेल्प करना चाहती हैं, या मान के चलिए आप उसको पैसे देना चाह रहे हैं, आपके पास में पर्स नहीं है, ये सिचुएशन है, क्या करेंगे? सर हम्म अगर मेरे पास पर्स नहीं है हाँ और अगर हम उसे मतलब जो, तो अगर मेरे पास जो भी होगा उस टाइम, अगर मान लीजिए अगर हमें देना हुआ, अगर हमें लगा कि उसे देना है, तो फिर अगर मेरे पास कुछ खाने को हुआ या पर्स नहीं तो फिर हम नहीं देंगे उसको। अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो हम नहीं देंगे। अगर फिर भी हमें उसको देख के ऐसा लगा कि नहीं वो बहुत नीडी है, तो वो बोलेंगे कि तुम कहाँ रहते हो, या फिर हम यहाँ रहते हैं, अगर तुम्हें इतनी जरूरत हो तो तुम घर आके ले लो, घर आके या ले। फिर तुम बता दो। अगर हमें ऐसा लगेगा कि वाकई उसको बहुत या हमें बहुत ज्यादा, तो हम उसको जाके दे देंगे, या फिर उससे बोलेंगे कि हम यहाँ रहते हैं, तुम्हें कभी टाइम हो तो तुम आके ले लेना। ओके, तो मतलब कोई आपके पास में लंच वंच अगर आप कैरी कर रही हैं तो मुझे लग रहा है आप दे देंगे उसको। अगर मुझे ऐसा लगा कि नहीं उसको जरूरत होगी बहुत ज्यादा, नहीं तो सर अदरवाइज नहीं। ठीक है ओके। सर हमको एक पास की शॉप पर जाना चाहिए, वहां से एक हाँ पेटीएम करना चाहिए शॉप वाले को, ये बढ़िया है, उससे भी कुछ भी टेक्नोलॉजी। परचेज करके उनको दे दीजिए, और नहीं तो उनको हम पेटीएम करके उससे दुकानदार से कैश लेके उसको दे सकते हैं। वाह, आप बहुत साफ दिल की इंसान हैं, आपने उधार चढ़ा लिया एक भिखारी के लिए अपने ऊपर। नहीं सर उधार के चलते सर अच्छा, दो आपने पांच पेटीएम, रुपए में कोई उधार थोड़ा चढ़ता ओके है सर। ठीक है, आपने पेटीएम जो है, ठीक है पेटीएम कर दिया, ओके पेटीएम कर दिया आपने, ग्रेट। दुकानदार को पेटीएम किया सर, दुकानदार को बेकर को पेटीएम, नहीं। हाँ हाँ yes। जी, क्या पता बेगर के पास भी वो कहे कि हम हाँ आजकल जो है सर पेटीएम से ले आजकल रहे हैं ऑनलाइन। हाँ, क्या पता बेगर भी क्या इतना पता उसके पास इंटेलिजेंट भी हो। वो कहे पेंडेमिक है, हम आजकल हमने अकाउंट खोला हुआ है, आप इस पे दे सकते हैं। तो हो सकता है। एटलीस्ट सर बेगर को तो नहीं देने की जरूरत पड़ेगी, बट हाँ किसी ओके शॉपकीपर को हाँ, करके लेकिन कुछ भी खाना वगैरह। परचेज करके दे सकते हैं हम उससे। वेरी गुड ओके, ये बहुत बढ़िया हम आइडिया अपने है। फोन को यूज कर सकते फोन हैं, को यूज कर सकते हैं, और बताइए। बाहर निकले एटलीस्ट फोन तो होता ही है हाथ में, जी अगर बिल्कुल पैसा बिल्कुल, नहीं है तो। यस राइट राइट। ओके मोर पीपल प्लीज, और लोग अपने आइडियाज। हाँ एक सिचुएशन में शेयर करना चाह रही हूँ। एक्चुअली एक बार क्या हुआ कि भिखारी जो था, मतलब बच्चा, तो सर उसको देख करके, और ठंड में उसके पास जूते नहीं थे, नंगे पैर, बेयर फुटेड, और कोई स्वेटर ढंग का कुछ भी नहीं पहना हुआ था। तो माय सन वाज अलोंग विद मी एंड इवन हस्बैंड। तो उन्होंने यही बोला, जैसे ही देखा बेटे ने कि मम्मा कैन वी हेल्प हिम, और मैंने कहा लेकिन अभी मतलब मैं अलग रखती हूँ जैसे जो देने वाली चीजें होती हैं, लेकिन इंस्टेंटली मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था। ओके
अब कैसे क्या कर सकते हैं सर? तो ही जस्ट मेंशन मम्मा हमारा घर तो ज्यादा दूर नहीं है, अगर आपको वाकई देना है तो आप उसको बोल दो ना कि वो रुक जाए और हम वापस आकर तो वो चीजें दे देते हैं। तो इट वाज समथिंग लाइक दैट। और फिर उसको रोका हमने गए घर पे और शूज और कुछ स्वेटर उसको दे दिया। Okay, great. And he was so happy to have them, or that makes him happy. Super, super. Yes, you feel a lot of satisfaction when you are able to help people. Wonderful. Okay, great. स्माइल इतनी मैटर करती है ना, चाहे हम उनको, लेकिन किसी के मुंह पर अगर स्माइल आ जाए हमारे कारण से, Yes. तो वो एक आलम ही अलग होता है। Yes. Okay. Great, great. Thank you, Anjali ma'am. More people, please. एक दो लोग और बताएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किसी और ने प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी। I will give you an example. Okay, I will share my experience. Yes, ma'am. मैं बेगर्स को कैश नहीं देती हूँ और देना भी नहीं चाहती हूँ, बिकॉज मैंने हमेशा सुना है कि वो कैश लेते हैं तो उनके पेरेंट्स छीन देते हैं, वो उससे अल्कोहल पीते हैं, ये सब करते हैं। तो जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ, आई मेक श्योर आई कैरी बिस्किट्स विद मी। 3, 4, 5 जितने मेरे बैग में जगह हो, बिस्किट्स के छोटे छोटे पैक रख लेती हूँ। और बड़े बेगर्स मांगते हैं तो मैं कुछ भी नहीं देती हूँ, इवन इफ आई एम साउंडिंग मीन, इट्स ओके। लेकिन बच्चे मांगते हैं तो मैं बच्चों को बिस्किट के पैकेट देती हूँ, क्योंकि एटलीस्ट मुझे ये श्योर होता है कि वो खोल के खा लेंगे, भले ही अगर उनको भूख है या नहीं है, या ऐसे ही शौक से भी बिस्किट इंसान खा ही लेता है। तो आई डिस्ट्रीब्यूट बिस्किट्स। ओके, सो यू आर श्योर इंश्योरिंग कि वो जो है एंड यूजर को बिल्कुल पहुंच जाए और उनसे कोई छीने ना, कुछ और ना हो। आई फील दैट वे, यस। दैट्स वेरी गुड, एक्चुअली दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। ओके, ग्रेट। ओके, कोई और कुछ कहना चाहता है? नवदीप मैम, सोनम मैम, आयुषी मैम, विभू, और जो है दूसरी स्क्रीन में वी हैव गॉट मीनल मैम, वेदांत। एनीबॉडी वांट्स टू कम इन? राधिका मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी? अगर आपके साथ ये सिचुएशन हो, क्या करोगे? मेरे साथ ये सिचुएशन हो तो मैं भी फूड ही देना प्रेफर करती हूँ, मैं पैसे देना बिल्कुल प्रेफर नहीं करती। मैं सबसे पहले उनसे आई जस्ट आस्क देम कि कुछ खाओगे, भूख लगी है? तो अगर वो कुछ भी बोलते, जैसे अगर पास में कोई स्वीट की शॉप है तो जैसे समोसे दिला दिए या कुछ भी, whatever I can afford, I just give them. अब राधिका मैम, अगर ये ऐसा हुआ कि समोसे खा के वो इतना खुश हो गए, उसने अपने आसपास के 15-20 और बैगर भाइयों को फोन कर दिया कि यहाँ तो समोसे मिलते हैं बढ़िया वाले, वो पब्लिक आपके पास डेली आने लग जाए तो मुश्किल हो जाएगी। नहीं, एक्चुअली डेली का नहीं होता ना वहाँ पे जाना, जैसे कभी कभार चले गए मार्केट में तो कोई दिख गया, जैसे छोटे बच्चे दिख जाते हैं, बड़ों आप गए, उन्होंने तो अब देख लिया आप कहाँ रहते हो, वो पता चल गया समोसे वाली मैडम आए हैं, अब पहुंच गए आपके पास में, अब क्या होगा? कितने दिन तक जितना हम नहीं, जब तक मतलब है दे सकते हैं तब तक देंगे डेफिनेटली। ओके, ओके, ठीक है, ग्रेट, ग्रेट, ओके, वंडरफुल। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसको सिनेरियो को समझिए। मैंने आपको एक सिचुएशन दी, आपको मैंने एक प्रॉब्लम दी, ठीक है? एक प्रॉब्लम जो है हमने पहले वीडियो में देखा, अरुणाचल जी ने भी सॉल्व की। उन्होंने वो प्रॉब्लम देखी, उन्होंने देखा कि भाई माय वाइफ हैज ए प्रॉब्लम, शी इज मैनेजिंग हर पीरियड डेज इन एन अनहाइजेनिक मैनर, तो मुझे क्या करना चाहिए, राइट? तो उन्होंने क्या किया, उस प्रॉब्लम को अपने हिसाब से उसको एड्रेस करने की कोशिश की। और कमाल की बात देखिए, ये प्रॉब्लम आज से थोड़ी थी, ये तो हमेशा से थी, किसी ने इसको देखा ही नहीं। मतलब हम लोग कितना ज्यादा व्हाट डू आई से, हम इतने इनसेंसिटिव हो जाते हैं अपनी आसपास की दुनिया को लेकर के, अपने चक्रों में ऐसा फंस जाते हैं कि इतनी सी प्रॉब्लम किसी को नजर नहीं है। एक साइकिल मैकेनिक हमको लगा कि जाके साइकिल मैकेनिक ने फाइनली उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढ के एक नैपकिन्स देने शुरू किए हिंदुस्तान की औरतों को। ये तो सरकार भी नहीं कर पाई, ये तो किसी ने सरकार में भी होके नहीं सोचा। जब छोटे बच्चे होते हैं तो दिमाग खा जाते हैं क्वेश्चन पूछ पूछ के, पापा ये क्या है, ये क्या है, इसको कैसा, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी क्यूरियोसिटी लेवल इतना कम होता जाता है कि हमारे आसपास कुछ भी हो जाए हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं उसके ऊपर। तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को नोटिस किया। कई बार क्या होता है, हम भी नोटिस करते होंगे, नोटिस करते हैं, लेकिन नोटिस करने के बाद में क्या हम उस पर कोई एक्शन ले रहे हैं? कई बार नोटिस करके हमारा बड़ा मन पसीज जाता है, कोई कुत्ता बेचारा बीमार पड़ा है या कोई पेड़ कट रहा है, कुछ हमको बस दर्द होता है, परेशानी होती है, फिर हम कहते हैं कि बस इसको ना देखें, हम उस सीन से हम ही हट जाते हैं। तो एक तरीका वो है उस प्रॉब्लम को डील करने का। एक है कि आप आगे बढ़ के आपने रोका कि नहीं, इस कुत्ते को कोई नहीं मारेगा, भाई मैं इसे खाना खिलाऊंगी, इस पेड़ को नहीं काटेगा कोई, या यहाँ गंदगी नहीं होगी, या जो भी आपको इश्यूज लगते हैं, या ओल्ड एज में किसी को कोई भी इशू है, आप
एक्चुअली क्या होता है कि भगवान ने हमें ऐसा बनाया कि हमें हर इशू सेंसिटिव नहीं होंगे। इफ मे बी हो सकता है कुछ लोग पेड़ कटने पे बहुत सेंसिटिव होते हैं नेचर के ऊपर, तो वो पपीज के ऊपर नहीं होंगे। कुछ लोग पपीज को लेके बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो वो ओल्ड एज को नहीं होंगे। कुछ लोग ओल्ड एज को लेके होते हैं, तो कुछ और किसी इशू के ऊपर नहीं होंगे, क्लाइमेट चेंज पे नहीं होंगे। तो ये सब चलता रहता है। जैसे मेरी नेफ्यू है, वो जो है वाटर के ऊपर बहुत ज्यादा उसको, अगर घर में किसी ने ज्यादा देर नलका खोल लिया तो उससे डांट पड़ जाती है हमारे को। तो शी इज वेरी कंसर्न अबाउट कि ये वाटर वेस्ट नहीं हो। तो सबके अंदर कुछ कुछ होता है। तो हमको ये चीजें दिखती हैं, लेकिन हम इस पे रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, इस पे क्या रिएक्ट करते हैं, वो बड़ा मैटर करता है। तो अरुणाचल ने इसके ऊपर रिएक्ट किया। रिएक्ट करने के बाद में 3-4 साल उस प्रॉब्लम के साथ में रहना, उसके सॉल्यूशन के लिए लड़ना, उन ऑब्स्टेकल्स को फेस करना। वो तो हंसी हंसी में बता रहा था, लेकिन किसी का डाइवोर्स हो जाए कितना मुश्किल है। उसके वो सोशल आउटकास्ट हो गया। लोग कह रहे हैं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, दिस पर्सन इज नाउ गेटिंग इनटू ये जो है सैनिटरी नैपकिन की बात कर रहे हैं, पागल हो गया, इसको हटाओ। लोग बात अपने घर वाले बात करने को तैयार नहीं थे। उसके अपनी बहनों के घर जा रहे थे, तो कह रहे हैं भैया इसको बोलो कि नहीं आए हमारे घर में। तो वो हंस के बता रहा था, लेकिन एक तरीके से सोशल आउटकास्ट हो गया। लेकिन उस चीज को उसने कंटिन्यू किया, एक सॉल्यूशन बनाया उसका। और सॉल्यूशन भी ऐसे बनाया कि किसी ने सोचा नहीं था। लोगों को लगता था हाँ भाई यही होता है, करोड़ों की मशीन में होता है, बड़े बड़े लोग ही कर सकते हैं, हमें जाके 50 रुपए का खरीदना ही है वो। और उसने देखा 4 पैसे की कॉटन यूज हो रही है, और वो जो है जाके 4 रुपए में बिक रहा है। इतना बड़ा प्रॉफिटफुल, इतना बड़ा जो है इसमें गैप है। तो उसने उसको सॉल्व किया, लो कॉस्ट नैपकिन बन गया। वो दुनिया के लिए उसने एक चीज निकाल दी। तो उसने उस प्रॉब्लम को हैंडल किया। अब ये वाली प्रॉब्लम आपको मैंने दी है, तो आपने अपने तरह से हैंडल करने की कोशिश की। मैं आई होप यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन। मैं आपको प्लीज कंफर्म यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन। आपको क्या दिख रहा है मेरी स्क्रीन पे, थोड़ा बताएंगे? जूम दिख रहा है ना? ओके ठीक है। ओके तो यही प्रॉब्लम जो है, आप मिस्टर बीन को जानते हैं सब लोग? यस सर। मिस्टर बीन को कौन नहीं जानता है? तो मिस्टर बीन के साथ में भी यही प्रॉब्लम आई। हम देखते हैं Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good. Is the audio fine? आपको इस वीडियो की ऑडियो आ रही थी अभी? यस सर। आप प्लीज अपने माइक्स जरा म्यूट पे कर लीजिए, ताकि सबको आसानी रहेगी। किसी का माइक ऑन तो नहीं है? ओके ग्रेट, थैंक यू। तो हम देखते हैं यही वाली प्रॉब्लम जो है, अब मिस्टर बीन को दे दिया मैंने, देखते हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ओके, एंजॉय द वीडियो। ओके तो आपने वीडियो देखी। क्या फर्क था इनका प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके में और जो हम जिस तरह से सोच रहे थे? यस नवदीप मैम, आपको बोलना पड़ेगा थोड़ी, आप बहुत देर से नहीं बोले हो। यस प्लीज। सर बहुत फर्क है एक्चुअली। ये आइडिया हम लोगों में किसी के भी दिमाग में नहीं आ सकता जो उन्होंने अप्लाई किया है। तो क्या फर्क है, क्या अप्रोच में क्या फर्क है, क्या किया उन्होंने? उन्होंने अपना एक न्यू आइडिया क्रिएट किया, बिकॉज ही वाज नॉट हैविंग मनी। तो उन्होंने मनी जनरेट करने का एक आइडिया क्रिएट किया उन्होंने। यस और उनको हेल्प भी किया, और अपना काम भी हो गया, और हेल्प भी। यस सर। और जेब से भी कुछ नहीं लगा। यस सर, अपना कुछ इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़ा। अपना इन्वेस्ट भी नहीं हुआ। देखिए हमारे जो तरीके थे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, जो हम डिस्कस करते थे, वो इमोशनल रीजंस थे बहुत। बट इमोशनल रीजंस में कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रॉब्लम इज दैट इट इज नॉट सस्टेनेबल। आप उसको स्केल अप नहीं कर सकते। ऐसे केस में वो जो अच्छाई होगी, वो अच्छाई बहुत ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचेगी, वो रैंडम अच्छाई होगी। आपको दिख गया कोई बिस्किट का पैकेट, आपने दे दिया, बेचारा कोई सिस्टम नहीं है, किसी की किस्मत में था बिस्किट मिल गया, किसी को नहीं मिला। उसको लगता है यार मैं क्यों नहीं, मेरे को क्यों नहीं मिला। किसी और के साथ में खाना किसी को खिला दिया गया, किसी और को नहीं मिला। तो देयर इज नो सिस्टम कि जहां पर कि गरीब का ध्यान रखा जा रहा है। बड़े ही रैंडम तरीके से, बड़ा किस्मत से उस तरह से चीजें हो रही हैं, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग है, उसमें हमारा एफर्ट लग रहा है। हम कितना दे सकते हैं किसी को? भाई आपने ठीक है अपने हिसाब से दे दिया, उसमें भी हमने कहीं ना कहीं बजट आपका लगता ही है। अगर आप डॉग्स को भी खिलाना शुरू करते हैं, टेल यू बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर आप छोटा 2-4 कुत्तों को खाना देने लगे, फिर डॉग फूड देने लगे, डॉग फूड की वो स्टिक्स 150 रुपए की आती हैं। वो जो है एक थैली मेरे ख्याल से स्टिक 150 रुपए की मुश्किल से 4 दिन चलती है। तो आपको 1500-2000 रुपए का बजट चाहिए जस्ट टू फीड 4 डॉग्स आउटसाइड योर होम। तो चैरिटी की भी कॉस्ट है।
हर चीज की कॉस्ट है, जब कॉस्ट जहां पे आ जाती है तो चीजें लिमिट हो जाती हैं, राइट? कॉस्ट आई तो चीजें लिमिट हो गई। अब वही बात है, उनके घर में समोसे खाने डेली पहुंच जाएंगे तो वो इतनी बड़ी बॉदरेश हो जाएगी, वो घर ना चेंज करना पड़ जाए, पता चला ऐसा ऐसा भी हो सकता है। सो वन अप्रोच इज टू डू इट इमोशनली, और एक अप्रोच होती है कि उस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व किया जाए कि एक सस्टेन्ड सॉल्यूशन मिले जो कि सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं है, इसलिए बहुत लंबे समय तक रहेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। दो लड़के न्यूयॉर्क में घूम रहे थे। न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर आपने सुना होगा, आप में से कई लोग गए भी होंगे, अगर नहीं गए तो कोई बात नहीं, भगवान ने चाहा जल्दी आपको चांस मिलेगा, आपकी लॉटरी लगेगी और आपको जो है पेंडेमिक के बाद में सीधा टाइम स्क्वायर जाने का मौका मिलेगा। तो टाइम स्क्वायर में वो बॉल जैसी है, इसलिए फेमस है। वो नया साल जब होता है तो बॉल ऊपर जाती है और फिर बॉल नीचे आ जाती है। इसको देखने के लिए वो जो साल चेंज हो जाता है कि हाँ भाई 2020 में बॉल ऊपर गई और 12:01 में वो बॉल नीचे आ जाएगी, बस हो गया, ये नया साल हो गया उनका। इसको देखने के लिए इतनी भीड़ होती है वहां पे कि और 6-7 घंटे लोग शाम को 4 बजे से खड़े हो जाते हैं लाइन लगा के, बॉल ऊपर जाके नीचे जाके देखें। कोई हिंदुस्तानी जाएगा उसको कोई मजा नहीं आएगा, वो कहेगा ये क्या था, उससे बढ़िया तो हमारे यहाँ रामलीला में होता है। एनीवेज, बट उनके यहाँ बहुत बड़ा क्रेज है। तो टाइम स्क्वायर में कैब्स अलाउड नहीं है एक लेवल पे, तो आपको कई सारे ब्लॉक्स चलने पड़ते हैं। जैसे आजकल करोलबाग जैसी जगह में हो गया, आप कैब्स अलाउड नहीं है, ऐसे चांदनी चौक में हो गया, आपको वहां पर ट्रैफिक अलाउड नहीं है, तो वो मैनेज करने के लिए ट्रैफिक अलाउड नहीं होता, बहुत दूर जाके आपको कैब मिलती है। अब कभी कभी क्या होता है कि किस्मत भी खराब होती है, कैब जब तक पहुंचे वो कई सारी सड़कों पर जाके, तो कैब वही हालत होती थी जैसे पहले हमारी होती है, वो ऑटो वाला आ रहा है, देखा, हाथ दिया, जैसी पास आया तो पता चला कोई सवारी बैठी हुई है, एक निकल गया, 2 निकल गए, ये एम्बेरसमेंट होती है, आदमी खड़ा रहता है बहुत देर तक। तो उनके साथ भी ऐसे होता, वो कैब को हाथ हिलाएं बेचारे, कैब आती थी, फिर उसमें कोई बैठा होता था, चले जाती, बड़ा परेशान हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गए। तो उनमें से एक कहता है यार कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए था कि आप ना बटन दबाते कैब आ जाती। तो उसका दूसरा भाई जो उसके साथ में जा रहा था, उसका दूसरा कहता पागल हो गया, बटन दबाते कैब आ गई, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं टाइम स्क्वायर में। फिर 5 मिनट में सोचा, हाँ यार अगर ऐसा होता, बटन दबाते और कैब आ जाती है, हो तो सकता है। अगर एक इंस्ट्रूमेंट कैब वाले के हाथ में, एक इंस्ट्रूमेंट मेरे पास में हो, हम दोनों एक दूसरे से बात कर सकें, अगर बटन दबाऊं मैं, उसको पता चल जाए कि मैं यहाँ खड़ा हूं, वो मेरे पास आ जाएगा, मजा आ जाएगा। भाई वो भी सवारी ढूंढ रहा है, मैं कैब ढूंढ रहा हूं, हम भी धक्के खा रहे हैं, वो भी पेट्रोल फूक रहे हैं। तो कोई ऐसा सिस्टम हो कि तू पेड़ के नीचे मजे से खड़ा रहे, तेरे को अपने आप मैसेज आएगा कि भैया तेरी सवारी यहाँ पे खड़ी है, सीधा वहां पहुंच जा, कोई झिकझिक नहीं करनी, कोई आपस में बात नहीं करनी, ये तो मजा आ जाएगा। क्या कैसे हो सकता है अब ये? इसको करना पड़ेगा। दोनों ने सोचा क्या हो सकता है, कैसे इंस्ट्रूमेंट होगा, ये होगा वो होगा, कोडिंग करी, उन्होंने सपने को छोड़ा नहीं। सपना क्या है, उनको जो आइडिया आ गया, एक लग गई धुन, सनक सवार हो गई, तो उसके पीछे पड़ गए वो करने में। खैर कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, आज की डेट में ऐसे ही होता है हमारे साथ में, सबके फोन में उबर और ओला के बिना तो आप जी नहीं सकते। तो ये वही दो लड़के थे और इन्होंने उबर फॉर्म करी, और आज हर फोन में 200 कंट्रीज से ज्यादा में इनका ऐप है, इसके बिना लोग जी नहीं सकते हैं, और बटन दबाते हैं और कैब आ जाती है। सोचिए कितनी बड़ी मुसीबत हमारी सॉल्व करी। मुझे अच्छी तरह याद है, हम छोटे होते थे, एयरपोर्ट जाते थे, तो माँ बाप जो है बेचारे उस टैक्सी वाले के हाथ पैर जोड़ रहे थे, प्लीज सुबह आ जाना, टाइम पे आ जाना। ही बिहेव्ड लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड, कि मैं ही हूँ, बस ग्रेट हूँ। और पेड़ के नीचे कोई होते थे, उनकी 4-5 टैक्सियां होती थी, और वो उनका अलग ही नखरा होता था। ऊट पटांग ड्राइवर आते थे, कभी किसी ने कपड़े ठीक से पहने नहीं पहने, कोई ड्रंक है, पता ही नहीं चलता था, कौन नींद में है क्या है। सुबह भी फिर आप जाते थे टैक्सी स्टैंड में, उसको उठा के, एक बच्चे का यही काम होता था, टैक्सी लेके आओ। शुरुआत में अगर आप घर में छोटे रहे होंगे तो सबसे यही काम था, सबसे छोटे का, जाएगा टैक्सी लेके आएगा, भुगतेगा, उससे लड़ेगा, जो भी करेगा, टैक्सी बढ़ जाएगी। वो इतना बड़ा अपने आप में एक जो है इवेंट होता था कि वो एयरलाइन से ज्यादा खतरनाक इवेंट था कि टैक्सी किस तरह से भाई सबको शलम पहुंच जाए वहां पे, इतना बड़ा इशू था। आज के डेट में आपको इशू लगता है? इट्स नथिंग। आपको बात ही नहीं करनी टैक्सी वाले से, बात ही नहीं करनी। आपकी कैब आती है, आप उसको ज्यादा से ज्यादा अगर है तो पिन कोड पिन बता देते हैं या कुछ अपना, एंड दैट्स इट। आप जाते हैं, पैसे भी पेटीएम से कट जाते हैं, कोई बात ही नहीं करनी है आपको किसी से, आपको उसकी शक्ल देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने जैसे जैसे उस चीज में बढ़ते गए, तो उन्होंने इस चीज को स्टडी किया, उसकी प्रॉब्लम को स्टडी किया, उन्होंने देखा कि बात सिर्फ टैक्सी की नहीं है, टैक्सी वाले भी अपने आप में बहुत बड़ी मुसीबत है, पुलिस अथॉरिटीज भी बहुत बड़ी मुसीबत है अपने आप में। कैसे हम उनको जो है किस तरह से क्या करें क्या नहीं करें, कई सारी चीजें लाइन लगा के, बड़े सारे इश्यूज थे, बहुत सारे इश्यूज थे वहां पे। तो ये सारे के सारे उन्होंने स्टडी किए पहले, क्या क्या प्रॉब्लम है। लोग पैसे टाइम पे नहीं दे पाते हैं, टाइम पे ड्राइवर नहीं आते हैं, ड्राइवर प्रॉपर्ली ड्रेस नहीं होते हैं, ड्रेस होते हैं प्रॉपर्ली बात नहीं कर सकते हैं, कस्टमर साथ में कर्टियसली बात नहीं करते हैं, गाड़ियां गंदी होती हैं, उसमें स्मेल आ रही होती है, 50 बातें थी। वो सारी की सिक्योरिटी का इशू था कि पता नहीं कहाँ ड्राइवर ले जाए, यू नेवर नो।
ये सारे के सारे उन्होंने पॉइंट स्टडी किए और सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए, सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, एक एक प्रॉब्लम को एड्रेस किया। और आज हमने फटाक से उस चीज को ले लिया। तो क्या ये प्रॉब्लम पहले नहीं थी? क्या हिंदुस्तान जैसे इतने बड़े देश में किसी ने फेस नहीं की थी? क्या एशिया में किसी ने फेस नहीं की थी? क्या यूरोप में किसी ने फेस नहीं की थी? दुनिया में फेस नहीं की थी? सबने की थी। लेकिन फेस करना प्रॉब्लम को और उस प्रॉब्लम को भूल जाना या उससे मुंह मोड़ना इज वन अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। और उस प्रॉब्लम को पकड़ के उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना और इस तरह से सॉल्यूशन ढूंढना कि वो आपको भी फायदा पहुंचाए, आपको भी फायदा पहुंचाए। बात सिर्फ ये नहीं, क्योंकि एक लेवल तक लोग सॉल्यूशन भी देते थे, लेकिन उस सॉल्यूशन में क्या होता था कि वो सॉल्यूशन दिया लेकिन अल्टीमेटली फिर जो है वो कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, वो वहां तक का हिसाब था। क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कुछ, आपने इतना एफर्ट किया, आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है, उल्टा लोग आपको बुला भला ही कहेंगे। यही रिवाज था एक तरीके का। लेकिन ये कुछ ऐसा मॉडल आया, उन्होंने कहा कि हाँ, एक प्रॉब्लम को लेके एक बिजनेस क्रिएट किया जा सकता है, इस तरह से एक सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है कि उसकी प्रोडक्ट और ऑफरिंग बना सकते हैं जिसका एक प्राइस होगा, लोग उसको खरीदेंगे और उनकी प्रॉब्लम दूर होगी। अब अगर आप ध्यान से देखिए, आप जितने भी प्रोडक्ट्स खरीदते होंगे वो बात प्रोडक्ट की नहीं है, वो सॉल्यूशन है। अगर आप हार्पिक भी खरीदते हैं जाके, तो आप हार्पिक किसी शौक से नहीं खरीदते हैं, आप इसलिए खरीदते हैं ताकि टॉयलेट साफ हो जाए। अगर आप डिटॉल साबुन भी लेते हैं तो आप किसी शौक से नहीं लेते, आपको यह है कि हाँ भाई डिटॉल कीटाणु मारता है तो इसलिए डिटॉल ले आओ, हाथ धो लो उससे। एवरी प्रोडक्ट इज सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। जिसको सुंदर दिखना है वो लक्स खरीद लेता है, जिसको कीटाणु मारने हैं वो डिटॉल खरीद लेता है, जिसको जो है त्वचा की कोई इशू है और उनको मॉइस्चराइजर चाहिए तो वो जो है डव ले लेता है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर आपको आज की डेट में एक साबुन लॉन्च करना पड़े माना, तो आप कैसा साबुन लॉन्च करेंगे? और आसान नहीं है ये, क्योंकि आप कहेंगे हमारा साबुन कीटाणु मारता है, पब्लिक कहेगी फिर डिटॉल ले लेंगे। आप कहेंगे इससे आपका चेहरा सुंदर है तो हम लक्स ले लेंगे। आपकी त्वचा मुलायम हो जाएगी तो उससे तो हम डव ले लेंगे। कोई और जो है जड़ी बूटी कर दे तो उससे मेडिमिक्स ले लेंगे। अब आप ध्यान से देखिए, सोचिए, अगर आज की डेट में आपको एक साबुन भी लॉन्च करना पड़ेगा तो क्या लॉन्च करेंगे आप, बताइए? एंड इट्स नॉट इजी। आप जो सोचेंगे उसका एक सॉल्यूशन अवेलेबल है। हम बोलेंगे हमारा साबुन सैनिटाइजर वाला है। सैनिटाइजर वाला, ओके। तो वो हाँ, एक तरीके से डिटॉल से कंपटीशन है, बिल्कुल ठीक है। पर यस, सैनिटाइजर वाला है इसमें। हाँ, ये नई चीज आज की डेट में हो सकती है। तो आपने क्या किया आपने? हाँ यस प्लीज, और बताइए। सर हम ये बोल सकते हैं कुछ ऐसा साबुन लॉन्च कर सकते हैं जिसमें ऑल इन वन, मतलब सब कुछ है, मॉइस्चराइज भी करता है और डेटॉल वाला काम भी करता है, लक्स वाला काम भी करता है। ओके, अब इस अप्रोच में खतरा ये है कि ऑल इन वन पे ना लोगों को विश्वास कम होता है। ठीक है, जैसे कि आपकी तबीयत खराब हुई, भगवान ना करे, आप कहीं डॉक्टर के पास पहुंचे, ठीक है, तो सिर दर्द हुआ तो भी सिर दर्द के तो खैर वैसे ही कोई नहीं जाएगा, कोशिश करते हैं घर में ही ठीक हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर माना कोई किसी की हड्डियों में दर्द होता है, ऑर्थोपेडिक के पास जाता है, किसी का बच्चा बीमार होता है तो कहाँ पीडियाट्रिक्स के पास लेके जाते हैं, कोई किडनी में इशू है तो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाता है। सोचिए अगर आपको ऐसे डॉक्टर मिल जाए, कहते हैं हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी बॉडी में कोई प्रॉब्लम ठीक कर दूंगा मैं, वन स्टॉप सॉल्यूशन, आप जाओगे उसके पास? कोई कहे कि हार्ट में, लंग्स में, दिमाग में, किडनी में, जहां इशू है मैं ठीक कर दूंगा, आप कहोगे डॉक्टर है, पागल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जो हम बात करते हैं ऑल इन वन सॉल्यूशंस की, ऑल इन वन सॉल्यूशंस में लोगों का विश्वास कम होता है, तो वो बिकता नहीं है। ओके, और बताइए सर। ये कहेंगे कि हैंडमेड है, अरोमा भी डाला है और नेचुरल वेस्ट से इसको बनाया है, नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ। ओके, यस यस, तो ये एक नया डिफरेंशिएशन आपने क्रिएट कर दिया, तो आपने एक जगह बनाई नया कुछ करके, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, हर प्रोडक्ट जो है एक सॉल्यूशन है किसी न ऐसी प्रॉब्लम का, और ये हमारे ऊपर है कि हम उस प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम दुनिया में देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। तो ये भी बहुत माइंड, हमें अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है, क्योंकि वो मसल जो है, माइंड भी एक मसल है ना, और मसल के बारे में कहा जाता है इफ यू डोंट यूज इट यू लूज इट। तो हम अगर दिमाग यूज नहीं करते हैं, अपना क्रिएटिवली यूज नहीं करते, तो क्रिएटिव वाले एंगल खत्म हो जाते हैं दिमाग के। हमको बस वो 9 to 5 ऑफिस ही और वही नजर आता है, फिर हम सो जाते हैं, फिर सुबह वही चलता है। तो अगर कुछ
अलग सोचना है, कुछ करना है, तो हमारे अपने हमको ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक है। और ये हमने ये वाली एक्सरसाइज जो कि ट्रेन करने की, कि आपको प्रॉब्लम का मैंने जो सिचुएशन दी, तो आपने अपने हिसाब से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की कोशिश करी, और मिस्टर बीन ने कैसे किया। सो द हार्ट ऑफ एवरीथिंग, जो जिससे भी आप पैसा कमा पाएंगे, कुछ भी कर पाएंगे, वो होगा अगर आप एक किसी प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक पजल है, यूनिवर्स की इस तरह से बनी होती है कि हाफ ऑफ द पोर्शन इज इनसाइड योर हार्ट एंड हाफ ऑफ द पोर्शन इज आउटसाइड। कुछ चीजें होंगी जिसको देख के आप ऐसे रेजोनेट करते होंगे, आपको होश नहीं रहता होगा समय का या खाने पीने का या किसी और चीज का, आप इतना ज्यादा उसमें मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होगी, चाहे वो आप डांसिंग होगी, चाहे आपकी पेंटिंग होगी, चाहे वो कुकिंग होगी, चाहे किसी झगड़ा करना ही होगा। कुछ लोग होते हैं झगड़ा करने का जब मजा आता है उनको, तो काफी देर तक कर सकते हैं, है ना। So you will have that some quality जिसको देख के आप बहुत रेजोनेट होते होंगे और आपको बड़ी फुलफिलमेंट लगती होगी। बाकी काम करने में बड़ी मुश्किल भी लग रही है, यहाँ पे आपको पता ही नहीं चल रहा टाइम कैसे निकल गया। तो ये जो है किसी तरह से यूनिवर्स ने हमारे हार्ट में इस तरह से कुछ चीजें फिट की हैं जो हमें समझनी है, हमें अवेयर होना उस चीज के लिए कि व्हाट इज दैट विच वी आर वेरी पैशनेट अबाउट, वो बहुत जरूरी है। तो एवरीथिंग विल स्टार्ट फ्रॉम सेल्फ, और वहीं से जो है क्लैरिटी आएगी कि हम क्या करना चाहते हैं लाइफ में, और हमको जो है खुशी किस तरफ मिलेगी, हमें फुलफिलमेंट किस तरफ होगी, हम कंप्लीट कैसे फील करेंगे। इट विल ओनली हैपन जब आप वो काम कर रहे होंगे जिसके लिए भगवान ने आपको बनाया है, और उसकी डिजायर बड़ी स्ट्रांग आपके हार्ट में डाली है। बस हमें उस डिजायर को सुनने में, उसको फॉलो करने में डर लगता है, और इसलिए हम उस डिजायर को बार बार धक्का मार के पीछे भगा देते हैं। फिर 9 to 5 ऑफिस चले जाते हैं, अपना काम में लग जाते हैं, फिर वो डिजायर थोड़े दिन बाद फिर आती है, फिर हम उसे फिर भगाते हैं, वो फिर आती है। तो ये आती रहेगी और आपको तंग करती रहेगी, इसको एड्रेस करना जरूरी है। सो व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, मैं अपना एग्जांपल देता हूं, उससे आपको थोड़ा हिंट मिलेगा और आप बता पाएंगे। मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, और बहुत टाइम तक मैंने इस चीज को रेजिस्ट किया। मैं बहुत सारे काम करता रहा, कभी कुछ करता था, कुछ करता कुछ, बट घूम फिर के मुझे जो है इस तरह से नॉलेज शेयर करना या इस तरह से लोगों से डिस्कस करना मुझे बहुत मजा आता था। धीरे धीरे मैंने हिम्मत करके उसको अपना प्रोफेशन बनाने की कोशिश करी, और जितना टाइम भी मैं ये काम कर रहा होता हूँ, आई डोंट फील द नीड फॉर एनी टाइम, आई डोंट फील द नीड फॉर फूड, आई डोंट फील द नीड फॉर एनीथिंग, आई फील हैप्पी एंड आई फील वेरी कॉन्टेंट। तो ऐसे कौन से आपके काम है जो आप जब करते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है एंड यू फील चार्ज्ड? जो ये कहते हैं ना हम काम करके थक गए, तो वो काम नहीं कर रहे हैं, वो कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जैसे नाक पे हाथ रख के ना कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो उन्हें पसंद तो है नहीं, पर अब करना ही है, तो इसलिए फिर थक जाते हैं बेचारे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप थके, बॉडी हमारी थकने के लिए बनी नहीं है। ये तो चार्जिंग मैकेनिज्म है, साथ साथ आप अपने पसंद का काम करते रहिए, साथ साथ चार्ज भी होते जाएंगे, आप थक नहीं सकते। सो व्हाट इज दैट नाउ, एंड यू विल हैव टू रियली थिंक। आप 10-15-20 सेकंड सोचिए और सच बताइए, उसको कवर अप मत कीजिए, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, क्योंकि वहीं से सारी चीजें शुरू होंगी। वहीं से फिर हम उस आइडिया पे काम करने की कोशिश करें कि कैसे हम जो है आपको उस स्पॉट में लाके रखें जहां पे आप जो आपकी एबिलिटीज हैं उसके हिसाब से आप कुछ काम कर सकें, और वहीं से कुछ अपना इनकम भी आपका जो है सोर्स बन सके। सोचिए और बताइए। आप चाहे तो चैट पे भी लिख सकते हैं कि व्हाट इज दैट व्हिच यू लाइक, आपको क्या मजा आता है। प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए। कुछ लोग अभी तक बिल्कुल भी नहीं बोले, क्या हुआ? कोई भी फीडबैक कुछ भी है? इट कुड बी एनीथिंग। और आज की डेट में वी आर लिविंग इन सच ब्यूटीफुल टाइम्स कि किसी को कुछ भी क्यों ना आता हो ना, अगर सोना पसंद है तो मैं उसका भी आपको तरीका बता दूंगा, उससे पैसे कैसे कमाने। आपको मालूम है गद्दे की कंपनियां जो होती है ना, वो पैसे देती हैं लोगों को, आओ इसमें सो जाओ और फिर हमारा फीडबैक दो, नींद अच्छी आई कि नहीं आई, रात में जगे तो नहीं, कोई भूतों के सपने तो नहीं आए, कुछ और तो नहीं हो गया, कमर में दर्द तो नहीं हो गया, पीठ में दर्द तो नहीं है। जब तक उसमें कोई सोएगा ही नहीं उस गद्दे में, तो लोगों को फीडबैक कैसे पता चलेगा, वो कंपनी बेटर कैसे करेगी। आप ये भी जानते हो कि पूरी ऐसी जॉब होती है जहां पे लोग जो है सिर्फ चाय पी के बताते हैं कैसी है, उनका काम ही होता है। उनके टेस्ट बड्स इतने डेवलप होते हैं कि वो चाय पीते बताते हैं कि ये कैसी है, ये स्ट्रॉन्ग कंटेंट कैटेगरी में आती है, लाइट में आती है, क्या 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 आती है, बड़ी सारी कैटेगरीज होती हैं, 50 तरह की चाय होती हैं। So whatever is that, you know, जो आपने आपके हिस्ट्री में आपने देखा होगा, आपने हिस्टोरिकली जब से आप
यू नो, सिंस यू हैव ग्रोन अप, ऐसे क्या चीज है which you think is, हेलो। हाँ जी, हाँ जी। सर मुझे पर्सनली मुझे बातें करना बहुत पसंद है, मतलब लोगों से बातें करना। ओके। जैसे उनके कोई प्रॉब्लम्स होती हैं उसको शेयर करते हैं तो उसका सोल्यूशन लाइक काउंसिल करना उन लोगों को, वो मुझे बहुत पसंद है। और कोई जरूरी नहीं कि सॉल्यूशन हमेशा ही दे पाए आप, लेकिन सुन भी लें उनकी बात, उनसे बात करें तो भी लोगों का मन हल्का हो जाता है, अच्छा लगता है उनको, राइट? तो ओके, यू कैन बी अ गुड काउंसलर। यस। है ना? तो अगर आप सिर्फ यही एडवर्टाइज कर दें, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास आज की डेट में बात करने को कोई नहीं है, आपको मालूम है कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये। जापान में इसके पैसे मिलते हैं। अच्छा। पैसे मिलते हैं वहां पे, लोगों के पास कोई बात करने के लिए नहीं है, वो कहते हैं हमसे पैसे ले लो, हमसे बात तो करो। इंग्लैंड में लोगों की ये हालत है। तो इंग्लैंड की सरकार ने क्या किया, वहां पे क्या है, लोग जो हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, तो उनके पास में बच्चे कहीं चले जाते हैं उनके, तो वहाँ सिस्टम ऐसा ही है हिंदुस्तान की तरह। अभी हिंदुस्तान में भी होने लगा, पर अभी कम है। इंडिया में फिर भी माँ बाप सब लड़ते रहते हैं, लेकिन साथ में रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। वहां पे क्या है कि बच्चे जो हैं दूर हो जाते हैं और वो माँ बाप ही रह जाते हैं। उनमें से भी किसी पार्टनर की डेथ होगी तो अकेले कोई है, घर है, सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन कोई बात करने को नहीं है। तो वहां की गवर्नमेंट ने देखा कि बहुत सारे सीनियर सिटीजन है जिनके पास में बात करने के लिए कोई नहीं है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास में रहने को नहीं है। जैसे दूसरे देशों से लोग जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो हॉस्टल में कई बार जगह नहीं मिलती, हॉस्टल बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो उन्होंने कहा अगर हम इनको मैच कर दें, इन स्टूडेंट्स को किसी तरह से सीनियर सिटीजन के घर में पहुंचा दें, और सीनियर सिटीजन से पूछें भाई कोई दिक्कत है अगर ये बच्चा आपके पास में आके रह ले 2 महीने 3 महीने, तो इज इट ओके? तो ये सब रिसर्च हुई, सर्वे हुई, तो पता चला कि लोगों ने कहा हाँ ये तो बहुत अच्छा है, हमें कोई बात करने के लिए मिल जाएगा। स्टूडेंट से पूछा इज इट ओके, उन्होंने कहा हमें रहने को मिल जाएगा। तो ये जब मैच किया गया तो अमेजिंग रिजल्ट्स इसके आए, और दोनों ही पार्टीज खुश हैं। किसका माइक ऑन है, स्विच ऑफ कर लीजिए। लाइब्रेरी में कुछ जहाँ पर लोग बात करते हैं, आपकी आवाज बात नहीं आ करने रही, हाँ फिर से प्लीज। सर मैंने ये देखा था कि पीपल्स लाइब्रेरी भी होता है, जैसे बुक लाइब्रेरी होता है, वैसे talk to each other और just for the sake of talking they meet। हाँ ऐसा हाँ, तो मैं ये भी क्लास को बताता हूँ। ये जो अंजलि मैम कर रही है, एक कंसेप्ट है ह्यूमन लाइब्रेरी का, कि अब तक जैसे हम जाके लाइब्रेरी से बुक लेते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनी, उन्होंने बहुत सारे इंसान रख लिए अपने पास। अब आप कोई भी इंसान चूज कर सकते हैं, मुझे इनसे बात करनी है, आपने उनसे बात करना शुरू किया, 1 घंटे के उनको पैसे देंगे, वो अपनी बात कर रहे हैं आपसे। इस तरह के प्रोफेशनल्स भी हैं आज की डेट में। मेरे ख्याल से कनॉट प्लेस में भी ये ह्यूमन लाइब्रेरी किसी ने शुरू हुआ था, मैंने उसको ट्रैक नहीं कर पाया हूं, पर ये ह्यूमन लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट है। जयपुर के जयपुरिया कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट ने अभी शुरू किया, उन्होंने ह्यूमन लाइब्रेरी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा ये लोग हैं, इनकी फोटो है, आप जिनसे आपको बात करनी है वो उस दिन फलाना दिन आपके पास वहां पे जो है कॉलेज में अवेलेबल होंगे, आप उनसे आके लाइब्रेरी में बात कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, लोगों को बात करने के लिए नहीं है। तो जो हम ग्रांटेड लेते थे, तो आप देख रही हैं राधिका मैम की सिर्फ बात करना भी जो है आपके लिए अमेजिंग प्रोफेशन हो सकता है। आप सिर्फ काउंसलिंग एक चीज है, बात करने में आप गाइड बन सकते हैं। बहुत सारे अंग्रेज आते हैं, वो चाहते हैं कोई हमसे बात करे, हमको घुमाए, हमारे घर, हमको अपने घर में रखे। होम स्टेज का कंसेप्ट ही यही। तो पीपल विल पे यू इन डॉलर्स, ताकि वो आप सिर्फ उनसे बात कर सकें और आप उनको मार्केट घुमा सकें, उनको समोसे खिला सकें, इसके आपको डॉलर में पैसे मिलेंगे। बट सर उसका करेक्ट प्लेटफॉर्म मतलब कहाँ से मिलेगा, क्या है वो एक मेजर, वो एक मेजर टास्क है, यहीं से मिलेगा। ओके, जो जैसा हो रहा है, जो असाइनमेंट है सब फॉलो करते रहिए, आपको सब राह मिल जाएगी। ओके, बिल्कुल बिल्कुल सर, ओके बिल्कुल सर। इनफैक्ट मैंने तो देखा है, मैं एक बार हेलसिंकी गया था, ये जो है फिनलैंड की राजधानी है। तो फिनलैंड में जब मैं पहुंचा तो वहां पर मैं पहले तो मुझे काम था, मैंने अपना काम जब खत्म कर लिया तो तब मुझे लगा कि मुझे घूमना चाहिए। घूमने में बड़ा अकेला लगा मुझे लगा कि कोई साथ में हो, हम जो है बातचीत कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। तो मैंने थोड़ा सा ढूंढा, तो वहां पे स्टूडेंट्स ने एक ग्रुप बनाया हुआ था और उसका नाम था हाई हेलसिंकी। आप उनको कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, और कोई ना कोई स्टूडेंट, मतलब एक होता है कि आप टूरिस्ट की तरह घूम रहे हैं, एक होता है आप लोकल्स की तरह घूमना चाहते हैं, जरा मजा आता है ना, कोई लोकल साथ में मिल जाए, घुमाए, हमको दिखाए कि क्या क्या होता है। तो वो एग्जैक्टली स्कूटर में जो है एक कोई बच्चा आ गया, पीछे बैठा के उसने हेलमेट में दे दिया, सारी जगह घुमाता रहा, ऐसे ऐसे अड्डों पे लेके गया कि जहाँ पे नॉर्मल टूरिस्ट जा नहीं सकता।
जैसे हमारे यहाँ चाट खाते हैं, उनके यहाँ कुछ खाते हैं, कुछ करते हैं। ऐसी ऐसी जगहों पे इतना मजा आया, ऐसे दोस्ती हो गई मेरी तो अच्छी खासी उनके साथ में। कभी चर्च ले जा रहे हैं, मैंने कहा वो बताओ जो तुम करते हो, जिस तरह से तुम जिंदगी जीते हो। वो अपने प्ले ग्राउंड लेके जा रहे हैं, यहाँ दिखा रहे हैं, वहां दिखा रहे हैं, ऐसे ऐसे अड्डे दिखा रहे हैं, ये हमारा यहाँ पे बीच है, ये वो है। इट वॉज अ ब्यूटीफुल काइंड। लेकिन ये कॉन्सेप्ट इंडिया में कम है और कितने सारे यहाँ बेरोजगार घूम रहे हैं। अरे अगर यही आप करें, क्योंकि जो टूरिस्ट है वो सब घूम चुका है, उसको जो है उसको कुतुब मीनार और ये सब ठीक है वो जाता है, लेकिन उनको एक लेवल अलग एक्सपीरियंस चाहिए आज की डेट में। सर क्या नाम बताया आपने? ये हाई हेलसिंकी, दिस इज वेयर आई वेंट, आई डोंट नो इफ इट स्टिल एग्जिस्ट, बट हाई हेलसिंकी वाज द टूर आई टुक। तो ये ग्रुप ऑफ यंग पीपल थे। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं मैम आप मुझसे? Okay, so you have to think कि what is that what you like। तो अब आपका असाइनमेंट आज का ये है, आपने एक पेपर में आपको फॉर्मेट भी दे देंगे हम, ठीक है, पर नॉर्मली जो है एक सिंपल सा जो है मैं आपको फॉर्मेट यहीं पे बना देता हूँ। तो जो आपको करना है कोई बहुत टफ एक्सरसाइज नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। आपको मेरी स्क्रीन तो दिख ही रही है शायद, ओके। तो इसमें ये है कि लिस्ट, मेक अ लिस्ट ऑफ मे बी 3 things which you are very passionate about, ठीक है, सिंपल एज दैट, ज्यादा कुछ नहीं करना है। और एंड वाई, ठीक है ना, आपको क्यों लगता है कि वो आप पैशनेट हैं उसके बारे में, ठीक है, एंड वाई, क्या क्या चीज़ है आपकी जो आप जिसको बहुत पसंद है आपको करना और क्यों, बस इतना सा आपको बताना है। और इस तरह का आपका फॉर्मेट है, ठीक है। आपने आपका नाम हो गया यहाँ पे और आपने बता दिया नंबर 1 थिंग व्हिच यू लाइक टू डू। एक्सक्यूज मी सर, यस यस, आपका स्क्रीन मुझे सिर्फ वो मिस्टर बीन का ऑफिशियल दिखाई दे रहा है, आपका स्क्रीन नजर नहीं आ रहा। ओके जी मेरे साथ यही प्रॉब्लम है। Okay, now it should be visible. I've shared my entire screen. I think it should be fine now, right? Yes sir, thank you. Number 1, number 2 and number 3, ठीक है। तो ये आपको इसको डिस्कस करना है, ठीक है। ये हम तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि why do you like, या हम इसको इधर भी ले सकते हैं। So this is your idea, ठीक है, यहाँ आपका नाम है, तो आप नंबर 1, आइडिया नंबर 1, this could be your serial number and this is number 1। यहाँ पे आपका आइडिया नंबर 2, आपको 2 लाइंस लगेंगी शायद लिखने में, 3, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू टॉक अबाउट। and we can merge these all, ठीक है। इस तरह से आप टेबल बना लीजिएगा। आपका आइडिया है, आपका आइडिया नंबर 1, आइडिया ये आइडिया क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है। और यहाँ पे हो गया आपका वाई, वाई इज दैट यू लाइक दिस आइडिया सो मच। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका हो गया, जैसे राधिका मैम ने बोला शी लाइक्स टू टॉक, ठीक है। आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे इन्होंने थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब किया कि मैं काउंसलिंग कर सकती हूँ, मतलब थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करिए अपने आइडिया को कि क्या आपको पसंद है एग्जैक्टली, और क्यों भी बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है, आपको क्यों लगता है। तो आप बता सकते हैं कि हिस्टोरिकली मैंने देखा है कि ये वन ऑफ चीज नहीं है, मैं कई इंस्टेंसेस में मैंने जो है देखा है कि मुझे बात करना पसंद है, लोगों को भी मेरी बात सुनना पसंद है, ऑल दैट, जो भी आपको लगता है। थोड़े उसके रीजंस जो हैं, सपोर्टिंग रीजंस जो हैं, इसको वाई की जगह सपोर्टिंग रीजंस कर देते हैं, ठीक है। तो दूसरी आपकी हॉबी, यस प्लीज, एनीबॉडी एल्स, वी हैव फ्यू मिनट्स। कोई और अपने बताना चाहे कि उनको क्या पसंद है। आप मेरी आवाज आ रही है? यस यस सोनम, आई कैन हियर यू, बताइए। मुझे लोगों को घूम करना बहुत पसंद है। लोगों को बेसिकली मैं घूम करना, जैसे मैं ग्रूम करना, मतलब कोई कैसा दिख रहा है उसको और कैसे अच्छा दिखा, वाह, ग्रूम करना, हाँ ये तो बहुत अमेजिंग है। ग्रूमिंग, पर्सनैलिटी। आपकी आवाज रुक जाती बीच में, कैसा ग्रूम, मेकअप करना चाहते हैं आप? पर्सनालिटी ग्रूम करना, ओके, ओवरऑल। जैसे मैं किसी को भी
देखती हूँ तो लगता है कि शायद इसने अगर ऐसा नहीं किया होता, शायद ये ऐसे बैठता तो ये ज्यादा अच्छा लगता, अप्रोप्रिएट लगता। तो शायद मुझे लगता है कि मुझे पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, मैं इवन मॉल में भी होती हूँ तो मैं किसी को अगर देखती हूँ तो मुझे लगता है शायद ये ऐसा होता तो ये ज्यादा बेटर, तो अब वो सच में बेटर होता है। मेरे आइडियाज बहुत वर्क करते हैं लोगों पे, तो शायद मुझे ये बहुत ओके, अब मैं बड़ा कॉन्शियस हो रहा हूँ। मुझे लग रहा है आप 1.5 घंटा से मुझे देख रही थी और आपको लग रहा होगा कि अगर ये वाली कैप पहनी होती तो ठीक लगते या ये ऐसा कुछ होता तो बेटर होता। अब मेरे को बड़ा मुश्किल आपके सामने क्लास लेना आपसे। मैं सीख रही हूँ बहुत दिन के बाद क्लास। Yes, yes, good, good. So that's why I was very silent and looking at everything. Okay, very good. You know, if you have this learner's attitude, this is the number one thing you need to grow in life. चाहे हम कहीं पर भी किसी पड़ाव पे हों, learner's attitude बहुत जरूरी है। और सेकंड एटीट्यूड ये कि हम चीजों को फिनिश लाइन तक लेके जाएंगे। बहुत सारी चीजें हम शुरू करते हैं और फिर छोड़ देते हैं जीवन में। अगर आप ध्यान से लाइफ में देखें तो हजारों चीजें हैं जो एक एक मंजिल बना के आपने छोड़ दी। अगर उसको वाकई में एक के ऊपर एक मंजिल रख के देखते हैं तो 100 मंजिल इमारत हो चुकी होती है। लेकिन हम एक एक मंजिल पे छोड़ देते हैं चीजों को, हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ में इंटरनेट है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ये है वो है। हम खुद ही ध्यान नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों जी रहे हैं। फेसबुक में कुछ करने जाते हैं, कुछ का कुछ दिख जाता है, हम कुछ करने लग जाते हैं, 1 घंटे बाद जाता है ओ माय गॉड ये क्या हो गया। तो अटेंशन स्पैन 0 हो चुका है। सारी कंपनीज हमको सिर्फ इसी तरह से यूज कर रही है कि हम ह्यूमन बींग्स नहीं है, हम तो सिर्फ एक कंज्यूमर हैं, बस कुछ खरीद लें इनसे। यही इसी तरह से हमारे पे बॉम्बार्ड होती हैं चीजें, राइट। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारा अटेंशन स्पैन ना हटे और हम ये प्रॉमिस करें अपने आप से कि इस कोर्स को कम से कम हम 16 लेक्चर पूरे एंड तक लेके जाएंगे, हम फिनिश लाइन पे जाएंगे। क्योंकि जब चीज को फिनिश करेंगे उसमें आपको टेस्ट ही अलग आएगा और बहुत कुछ आप सीखेंगे, राइट। और इतनी सारी टीम है, बहुत अच्छा ग्रुप है ये, तो इसमें हम एक दूसरे की मदद भी कर पाएंगे। और आई एम वेरी होपफुल कि आपस में भी कोलैबोरेट करके बिजनेस शुरू होते हैं, वो भी आप कोलैबोरेशन देख पाएंगे। सो मेनी गुड थिंग्स विल कम और जनरली आप ग्रो करेंगे। सो आफ्टर दिस 16 सेशंस आई कैन प्रॉमिस यू कैन बी यू विल बी अ बेटर पर्सन, यू विल बी अ बेटर कम्युनिकेटर, यू विल बी मोर इन्फॉर्म्ड, यू विल नॉट बी हेजिटेंट, यू विल बी मोर रेडी। चाहे जॉब के लिए या कहीं पर भी आप अपने आप को एक रेडी पाएंगे, राइट। इतनी सारी चीजें आप सीख लेंगे, इतने सारे टूल सीख लेंगे और अपने पीयर से आप अपने आप को आगे पाएंगे। आपको लगेगा अब तो मैं ये टूल भी मुझे यूज कर, आपका हेजिटेशन हट जाएगा सोशल मीडिया यूज करने में, किसी भी चीज में, तो आप ग्रो करेंगे लाइफ में, ठीक है। और उसके फिर फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी आपको दिखेंगे, ठीक है। मैं आपसे स्क्रीन तो मेरी शेयर्ड है ही, मैं आपसे एक और शेयर करना चाहता हूँ। ओके, आई होप यू आर एबल टू सी दिस सेकंड वर्ड फाइल आई हैव शेयर्ड। दिख रहा है आपको? ठीक है। तो ये आपके 16 सेशंस रहेंगे। तो मॉड्यूल्स हैं इसके कुछ। तो मॉड्यूल 1 हमारा है पर्सनालिटी क्लैरिटी। जैसे अब मैंने आपको पहली असाइनमेंट दी है कि आप अपने आप को प्रोब कीजिए, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा, ये आपको मैं शीट मिल जाएगी, आपको भेज दी जाएगी, ठीक है। नो नीड टू कॉपी, अभी आप सिर्फ समझ लीजिए। तो अपने आप को समझना, हम इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। जैसे हमने हमारी वैल्यू सिस्टम्स क्या है, हमारे पैशंस क्या है, हमको क्या इंटरेस्ट आता है वगैरह वगैरह। इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि हमको अपने बारे में मालूम पड़ता है, ताकि हम फिर जो है रिलेट कर सकें कि हम क्या बेस्ट करें। सिमिलरली विल गो अहेड कि किस तरीके निश होनी चाहिए। फिर हम कस्टमर पे बात करेंगे कि हमारा कस्टमर कैसा होना चाहिए, राइट। हम अपने टारगेट कस्टमर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद में और आगे बढ़ते हैं हम कि अपने प्रोडक्ट्स को कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं, हम क्या फाइनली हमारा प्रोडक्ट क्या हो। जैसे राधिका मैम के केस में है, इनका प्रोडक्ट ये होगा कि ये 3 मेंबरशिप देंगी, ठीक है। राधिका मैम आप सुन रही है मेरी बात को? आर यू देयर? हाँ जी सर, हाँ जी, यस सर, आई एम देयर। हाँ, तो आपके जैसे तीन आप लोगों को देंगे कि 40 मिनट की टॉक, 1 घंटे की टॉक या 2 घंटे की टॉक। 40 मिनट टॉक के 300 रुपए, 1 घंटे की टॉक के 500 रुपए और जो है 2 घंटे की टॉक के 1000 रुपए। ये काउंसलिंग के आपके चार्जेस हो जाएंगे, राइट। तो ये पैकेज होगा। तो किस तरह से पैकेज डिजाइन करेंगे, लोगों को बताएंगे डिजाइन करके, सो दैट पीपल एक्चुअली क्योंकि अभी तक तो पता ही नहीं है लोगों को, आपके दिमाग में रह जाएगा या आपके मन में रह जाएगा कि आपको बात करना अच्छा है। आपके पड़ोसी को भी नहीं पता कि आपको बात करना अच्छा है, किसी को यही नहीं पता कि जो है आप काउंसलिंग भी कर सकती हैं आप। जब तक किसी को पता नहीं होगा और क्लियर कट पता नहीं होगा, डॉक्टर को भी बोर्ड लगाना पड़ता है ना बहुत बड़ा, बच्चों का विशेषज्ञ या इसका विषय, तब तो लोगों को मालूम पड़ता है। तो हमें भी अपनी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, पब्लिक को बताना पड़ेगा दिस इज व्हाट वी आर गुड एट, दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। तो तब आपके पास में पब्लिक आनी शुरू होगी। कैसे हम उसको थोड़ा, और इसमें देखिए थोड़ा सा करेजियस होना पड़ता है, ये शर्मा के चीजें नहीं होती हैं। और किस बात की शर्म करनी है हमको, ठीक है ना। कोई हमको राशन तो लाके डाल नहीं रहा है, हम वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर आवरसेल्व्स। तो हमको आगे बढ़ के हिम्मत करके, अगर यही उन्होंने सोचा होगा, शर्म कर जाते कि अरे यार कौन कब करे इसको, और कैसे अच्छा थोड़ा लगेगा, लोग कहेंगे बटन दबा के गाड़ी आ रही है, तो फिर उबर नहीं आ सकती दुनिया में। अगर 1000 एक्सपेरिमेंट ना करते एडिसन जो हम कहते हैं, तो बल्ब नहीं आ सकता था दुनिया में।
तो वो कुछ अलग ही लोग होते हैं जो कुछ नई चीज को क्रिएट करते हैं, और आप उनमें से हैं क्योंकि आप एक्शन टेकर हैं, आप इस कोर्स में आए हैं। बहुत सारे लोगों ने भी सोचा होगा, बड़े सारे कोर्स उनको भी दिखे होंगे, उन्होंने अटेंड नहीं किए होंगे, लेकिन बैठ के अटेंड करना डिसिप्लिन से और उस चीज को समझना, एफर्ट लगाना, अपने भी घर में कई सारे आपको काम होंगे, आप आए हैं, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। और आई टेल यू देयर आर ओनली 4% पीपल इन द वर्ल्ड हु टेक एक्शन। बाकी सब बातें करवा लो उनसे पूरी। टीवी के सामने आपने देखा होगा लोग कितने सारे होते हैं। सचिन तेंदुलकर ने किसी ने कोई स्ट्रोक मारा तो यहाँ पे कोई भी बता दे, रिक्शा वाला भी कहता है अरे ऐसे नहीं ऐसे करता तो चौका चला जाता है, खेलना ही नहीं आता इनको। तो वो बातें सब होती है, अल्टीमेटली जाके उसको एक्शन में लाना वेरी लेस पीपल डू। सो आई होप ऑल ऑफ यू विल टेक एक्शन, और ये मॉड्यूल्स आपको हेल्प करेंगे। मॉड्यूल 3 इज अबाउट द प्रोडक्ट, देन वी हैव मॉड्यूल 4 जिसमें हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कर रहे हैं। उसमें मैं आपको सिखाऊंगा अपना डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं, किस तरह से आप अपने जो है डॉक्यूमेंट करते हैं कि आपकी कितनी अर्निंग हुई है या नहीं, क्योंकि जब तक हमें यही मालूम नहीं है कि हमने पैसे कितने कमाए हैं, तो हमें ये भी नहीं मालूम पड़ता हमने कितने पैसे गंवाए हैं, हमें कोई आइडिया नहीं होता उसका। तो ये सब चीजें होने से हमको बड़ी इंस्पिरेशन आती है, हमारे सामने क्लियर कट पाथ होता है, और जब क्लैरिटी होती है तो चीजें जल्दी होती है हमारे साथ में। कैसे हम प्राइसिंग करें, क्या अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे रखें, वो सब भी है। फिर किस तरह से हम टूल्स को यूज कर सकते हैं, डिजिटल टूल्स को, आज की डेट में कोई ऐप डाउनलोड करना है, कुछ करना है, कैसे उसको यूज कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा कम्युनिकेशन वगैरह, प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, अपनी मार्केटिंग ब्रांडिंग कैसे करते हैं। मैं आपको पूरे डिजाइन बनाना सिखाऊंगा, कैसे आप बढ़िया बढ़िया डिजाइन बना सकते हैं, या आप ईमेलर्स बना सकते हैं, लोगों को भेज सकते हैं। व्हाट्सएप में बहुत अच्छे डिजाइन बना के आप लोगों को जो है भेज सकते हैं, रादर देन सिंपली ये कहना कि जैसे आजकल जो है बहुत लोग खाने का भी काम कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी में कई सारे लोग एक्टिव हो गए हैं, तो व्हाट्सएप में सिंपल लिखा आता है डोसा 90 रुपए, ये इतना। एक वो तरीका है, एक होता है बहुत सुंदर सा फोटो के साथ में ये आ गया तो वो 130 रुपए, तो लोग उसे भी लेने को तैयार हैं। सो प्रेजेंटेशन ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। तो जैसे हमको सोनम ने बताया कि शी वुड लाइक टू ग्रूम समबडी, सिमिलरली यू हैव टू ग्रूम अ प्रोडक्ट, यू हैव टू ग्रूम दैट ऑफरिंग ऑल्सो। उसकी भी पर्सनालिटी बनानी पड़ती है। अब मर्सिडीज का ऐड आता है और मारुति का ऐड आता है, कुछ तो फर्क दिखता होगा आपको, है ना? जो somebody is grooming the personality of that car with the kind of photographs, with the kind of logos, with the kind of taglines, with the kind of colors, with the kind of models, तो हम परसीव करते हैं कि हाँ ये एक जो है ये लग्जरी ब्रांड है। ठीक है, तो इस तरह से कैसे अपनी प्रोडक्ट्स को हम ग्रूम करेंगे, कैसे अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाएंगे, क्योंकि अब हम जब प्रोडक्ट लाएंगे तो हमें कस्टमर्स भी चाहिए, तो हम कैसे जा के फेसबुक से सोशल मीडिया को यूज करके हम कस्टमर्स लाएंगे। फाइनली हम सेल्स कैसे करेंगे और उसको ट्रैक कैसे करेंगे, अपनी नए नए प्रोडक्ट्स कैसे लाएंगे, उसमें क्या रिसर्च और इनोवेशन लगती है। थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हम थोड़ा सा आपको इनपुट्स देंगे, और अगर गवर्नमेंट से कोई हेल्प छोटी मोटी मिल सकती है, कोई उनकी स्कीम्स हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो आई एस्टिमेट कि ये 16 सेशंस के बाद आपको बहुत ग्रोथ आपको फील होगी। और इसके अलावा जब भी आपको कोई 1-to-1 मुझसे बात करनी है, कोई अपने प्रोडक्ट्स को डिस्कस करना है, या आपको जो है अपने असाइनमेंट्स डिस्कस करने हैं, तो हम जंप नहीं करेंगे, हम अभी फर्स्ट मॉड्यूल में फर्स्ट की ही बात करेंगे। अगर प्रोडक्ट है तो प्लीज वेट टिल द 5th-6th सेशन, वो सेशन हो जाएगा, फिर आपको या तो खुद ही क्लैरिटी आ जाएगी। उसके बाद भी कोई इशू है तो देन यू कैन सीक टाइम, आप इनशक्ति टीम को लिख सकते हैं कि हमें 1-to-1 सेशन सर के साथ चाहिए, फिर आपके साथ एक टाइम अरेंज होगा, और उस टाइम पे उस स्लॉट में मैं आपको एड्रेस करूंगा जो भी आपकी क्वेरीज होंगी 1-to-1। ठीक है, तो उसमें कई सारी चीजें हो सकती हैं, हो सकता है शुरुआत में आप हेजिटेंट फील कर रहे हो, वैसे तो नहीं करना चाहिए, पर फिर भी अगर आपको लगता है किसी चीज को लेके यू आर हेजिटेंट, यू डोंट वांट टू डिस्कस इन फ्रंट ऑफ द क्लास, और यू आर मोर कंफर्टेबल डिस्कसिंग 1-to-1 विद मी, यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, लेकिन ये हमने प्रॉमिस करना है कि यस बाय द टाइम दिस कोर्स एंड्स हम अपने ही एक सेकंड वर्जन होंगे। जो आज की डेट में अगर सोनम 1.1 इस क्लास में आई हैं, तो सोनम 1.2.0 ही निकल के जाएंगे यहाँ से। शी है ना, दिस वी हैव टू ओवरहॉल आवरसेल्व्स, क्योंकि कोविड के बाद में आप देखिए बहुत सारी स्किल्स चेंज हो गई हैं, और जो भी लोग इन स्किल्स को आज की डेट में जो अवेयर हैं और जो यूज करेंगे वो ग्रो करेंगे। और आज के डेट में घर बैठ के भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं, सो मेनी थिंग्स कैन बी डन। लेकिन बस एक अवेयरनेस चाहिए, वो एटीट्यूड चाहिए पढ़ने का, और फिनिश लाइन तक आपको जाना है। आपको हर सेशन अटेंड करना है, हर असाइनमेंट कीजिए, कोई बात नहीं, घबराइए मत, नहीं होती असाइनमेंट, कोई ऐसी बात नहीं है, क्लास में कीजिए, आप आपस में बात कीजिए। ठीक है, ओके, एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। शुरुआती थोड़ी डिस्टर्बेंस थी, उसके लिए हम माफी चाहते हैं, कोई बात नहीं, होता रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एनीथिंग यू वांट टू से, एनीथिंग यू वांट टू, एनी फीडबैक्स प्लीज? इस तरह से अगर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ओके लग रहा है, या किसी और तरह से मुझे पढ़ाना चाहिए, कोई और तरीका? मैं चाहता नहीं कि क्लासरूम जैसा लगे, आई जस्ट वांट कि एक कन्वर्सेशन की तरह रहे, और स्कूल जैसा वो टेंशन ना लगे, मजा स्कूल जैसा मजा रहे लेकिन टेंशन ना रहे स्कूल वाली।
Any feedbacks, please? Anything you want to say, or is that okay? Everything is okay. करण में Yes, अगर I feel एक comfortable. सेंटेंस लिखा है कि हमने राम से काम करवाया, सर क्लास काफी अच्छी थी और काफी कुछ सबके रिव्यूज सुनने में भी मजा आया. Okay, great. जी सर, class is very good. Thank you. And I enjoy it. Okay, super. वो जरूरी है, देखिए एंजॉयमेंट इज द नंबर वन थिंग है ना, लर्निंग साथ साथ हो जाएगी, बट वी मस्ट एंजॉय. Okay. Very much excited for the coming sessions. Okay, super. Can you please show the screen before? You want to see the screen? Yes. Which one? This one? No, before this one, the one with the tabular. This thing. Yeah. Thank you. ये आपको भेज देंगे हम WhatsApp में, आपको आ जाएगा. This will be shared in the WhatsApp Yes, group. this would be shared in the WhatsApp group. Yes. Thank you. Right? एक चीज और सर मैं कहना चाह रहा था. जी. कई लोगों ने ज्वाइन किया है सेशन जिसमें उनके नेम्स डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं, जैसे अलग अलग नाम आ रहा है. तो जब भी सेशन ज्वाइन करें तो वो अपना नाम एंटर कर लें ताकि हमें पता रहे कि कौन किसने ज्वाइन किया है सेशन. जैसे Redmi 6 Pro हमें नहीं पता चल रहा कि ये कौन है. Similarly, there are so many names like Redmi 6, Redmi Note 10, Satyanarayana Behra. क्या नाम है? Satyanarayana is whose login is this? Can you please mention your name here? Madam Divya Bharti Sahu. Okay, very good. Thank you so much. Because next time onwards, you put your name there. Okay, so that we can know who was connected. Okay, this way it's difficult to find out, no? And who was connected in the name of Vedant? Vedant. And the phone, somebody is using Honor 7A. Who is using Honor 7A? Redmi Note 10 is Abina Bashir. Okay, got it. Okay, who is Redmi 6 Pro? And if, yeah, Vedant, login is Vedant, please. Yes, ma'am. Vedant is, what's your name, ma'am? मेरा नाम जी सुनिधि पारिक है. Huh? सुनिधि पारिक. Okay, Sunidhi Parik. Okay, Vedant is Sunidhi Parik. Thank you so much. And Honor 7A? Yes, ma'am. It is me, Chaitali Raut. Honor 7A. Okay. Very good. Thank you so much. And who is Redmi 6 Pro? Who's using Redmi 6 Pro? Is the connection still on? Redmi 6 Pro? On. Okay, so, there's one more person, EF14481F. There's no name in that also. So because we take the attendance for every day, so we know who's attending and who's not attending. So kindly share your name in the group, WhatsApp group. Whoever has not, answered me, share karna group mein aapka naam, so that we can mark the attendance for you for today's session, right? Huh? Isme they are not responding, na Deepak. Redmi 6 Pro and EF14481F. I want to know who's this. Yeah. Okay, thanks. Thank you so much, Vikas. Yeah, thank you. Next session is on Friday. Okay, so going forward, once the class picks up, 1-2 session hone ke baad, we can have a session on Wednesday, 4 to 5:30 for clearing your doubts. Okay, next session with Vikas sir is on Friday. Agar after next session, 2-3 session hone ke baad, when class pickup हो जाएगा और chapters complete करेंगे सर, बीच में आपको हो सकता है doubts हो किसी भी topic के ऊपर, आप ग्रुप में डाल सकते हैं. We will have a doubt clearing session on Wednesdays. आपका क्लास Monday and Friday है, Wednesdays होगा आपका doubt clearing के लिए.
सो आप उसमें कर लीजिए, सो दैट हम सेशन को डिस्टर्ब ना करेंगे। सेशन 16 सेशन वो प्लान के हिसाब से चलेगा, लेकिन हम एक्स्ट्रा सेशन बीच के एक दिन लेके हम उसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आज तो उन्होंने वेरी शॉर्ट असाइनमेंट दिया आपको, ज्यादा मुश्किल नहीं है वो। जैसे जैसे आपका टॉपिक्स बढ़ता जाएगा आपको असाइनमेंट्स भी मिलता रहेगा। उस असाइनमेंट्स में कुछ भी आपको दिक्कत है, कुछ डाउट्स है, पूछना है, तो यू कैन अप्रोच अस। हम वेडनेसडे उसके लिए सेशन रखेंगे 4 to 5:30। गाइड गॉट इट राइट? Rajalakshmi. Yes, Okay, ma'am. yes. Thank you, ma'am. सार्वनामिक में Thank you, सेशन ma'am. में Yeah, somebody has a question, right? Vibhu? Yeah, Rajalakshmi. This Monday we won't have a session, right? Now it's straight away next Friday. No, Monday we will have. Monday we will have. Today is Friday, so you said next session will be on Friday. Next is on Monday. Next Monday, is on- Monday, see, Monday. The regular classes will go on Monday and Friday. In between, we will have a doubt clearing sessions. Okay, thank you. Okay. Okay. Thank you so much. Thanks a lot. Have a good day. Is that all, Vikas? Yeah, I'll end the meeting right now. Okay. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, bye-bye, thank all you, of you. sir. Wonderful Thank you. meeting all of you. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Okay. Bye bye. Take care.